The reason of going to Supreme Court was that I had earlier filed a petition asking for a stay on the Citizen Amendment Act. And at that time, the government of India's council stood up and said verbally that they are yet to frame rules. And so now there's no need for it. Now, when the rules have been framed, there is an urgent need, which I felt that we should go to the Supreme Court asking for a stay on the rules. Because if the government starts giving citizenship on the basis of this discriminatory law, then it will be very difficult to turn the clock back. And secondly, the whole country knows that in Assam a Supreme Court monitored NRC was done, wherein 19 lakh people names were not included. Now in that you have around about a million names of non-Muslims, wherein we feel that they can be accommodated under the new rules and the new law, and it will be discriminatory on the part of the government to exclude the Muslims. Second important point which we had mentioned, which is drafted by our lawyer Janab Nizam Pasha Sahib, is that the Supreme Court has held that any allurement to conversion of religion is also a crime. Now, people who are not Muslims will be given citizenship. That in itself is an allurement by the government that if you belong to this religion and you don't belong to Islam, then citizenship can be given to you. So these are the two important grounds which our lawyer Janab Nizam Pasha has mentioned, and we have asked. That is why we have gone to Supreme Court, hoping inshallah that the Supreme Court will take a favorable decision in our favor. And the timing of the notification also is something that would have a political impact, you think, on the forthcoming elections? Of course, the government had waited deliberately for 4 long years after passing this unconstitutional law with the brute majority in the parliament. And keeping in mind the Lok Sabha elections, the government took the decision a few days before the dates of the Lok Sabha general elections have to be announced. सर आपने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को? तो हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काउंसिल ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रूल्स नहीं बनाए हैं, तो इसलिए अभी इस पर कोई बहस करना बहुत जल्दी होगा। अब जबकि मोदी हुकूमत ने CAA के रूल्स बना दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। नुकसान ये है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC आसाम में हुआ जिसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, उसमें से करीब 1 लाख के करीब मुसलमान हैं, बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर आप इस लॉ के उस रूल्स के तहत उन तमाम लोगों को दे देंगे सिटीजनशिप जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो ये बड़ा ही नाइंसाफ़ी होगी उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1960s या 70s में एक जजमेंट में कहा था कि अगर कोई एल्योरमेंट आप देते हैं किसी को अपना रिलीजन बदलने के लिए, तो वो भी एक क्राइम है। अब ये सरकार ये कह रही है कि अगर आपका रिलीजन इस्लाम है या आप मुसलमान हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, अगर आपका रिलीजन इससे हटकर होगा तो हम दे देंगे। तो ये भी एक किस्म का एल्योरमेंट है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमारे फाजिल वकील जनाब निज़ाम पाशा साहब हैं, और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर देखेगा। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट
में क्या होता है। सर, आपने जैसे सीए जैसे लागू हुआ तो आपने कहा कि चुनावी फायदा लेने के लिए चुनाव जस्ट आने वाला है, उससे पहले क्या ये आप पे अप्लाई नहीं होता कि आप भी जो डॉक्यूमेंट आपने शो किया सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच हुए, आज अभी इस वक्त अनाउंसमेंट हो रहा है, चुनाव का ऐलान हो रहा है, उसके ठीक उसी दिन आप भी कर रहे हैं, तो क्या आप भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे? देखिए, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि यह कानून पास हुआ था 2019 में। रूलिंग पार्टी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की सरकार ने इसको पास किया, तो वो लोग इसको दबा के रखे अपने पास, अपने बगल में दबा के रखे, और जैसे ही उनको मालूम था कि 1 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के चुनाव की डेट्स अनाउंस करेगा, उन्होंने रात में ये रूल्स का ऐलान कर दिया। जब सरकार चुनाव को सामने रखकर फैसला ले रही है तो ये बहुत गलत बात है कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा हूँ। जब कोई रूल्स बनाती है सरकार तो मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ना। मैंने तो उस कानून को लोकसभा में इस बिल को फाड़ा था, इस कॉन्स्टिट्यूशनल काला कानून कहा था, और इस बिल के जरिए, इस कानून के जरिए सरकार मुसलमानों को खास तौर से और गरीबों को स्टेटलेस बनाना चाहती है, और इस कानून को आपको एनआरसी एनपीआर से जोड़ के देखना है। तो सियासत तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इस तरह का कानून बनाकर। सर, एनसीआर एनपीआर के साथ जोड़ हाँ। कर देखा के ऊपर जो है आप झूठ फैला रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप डर पैदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो आप बात बोल रहे हैं वो प्रोविजन सीए के जो नोटिफिकेशन है, जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन उसमें नहीं है। उनका आरोप है कि आप जानबूझकर राजनीतिक फायदे मैं एक ही बात कह दी अमित शाह और नरेंद्र मोदी। क्या अमित शाह ने पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहा था कि देश में एनआरसी एनपीआर भी होगा? आपके कई टीवी चैनलों पर अमित शाह ने कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए, एनपीआर एनआरसी होगा। क्या बीजेपी ये कह दे कि आसाम में जो 19 लाख लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी जो हुआ था, जिसमें 1600 करोड़ रुपए खर्चा किए गए और 50 लोगों ने सुसाइड कर लिया, उसमें हेमंत बिस्व शर्मा जो मुख्यमंत्रियों कह रहे हैं, वो कह चुके हैं कि जो नॉन मुस्लिम है उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। मुसलमान क्या करेगा? वो एक खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं। पहले तो सिटीजनशिप का कानून आप मजहब की बुनियाद पर क्यों बनाया? आपने बनाया, इसको गलती आपने की, जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है भारत के संविधान के। तो वो कर रहे हैं सब चीजें। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लेकर आप आवाज उठा रहे हैं, तो इस इलेक्शन में जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू उठा है, तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? जो अपने आप को खरीदार के सामने बेच दिए, जो बिक गए, जिन्होंने बड़ी बोली लाकर वो खरीद लिया, तो वो उनको फायदा हो रहा है ना भाई। 6000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स नरेंद्र मोदी की पार्टी को मिले हैं। 1500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स ममता बनर्जी की पार्टी को मिले हैं, और 1300 कितने सेकंड नंबर पर बीआरएस को मिले हैं 1300 करोड़, नहीं सॉरी कांग्रेस को मिले हैं 1300 करोड़, फिर 1100 करोड़ बीआरएस को मिले हैं, फिर आरजेडी को 70 करोड़, एआईएडीएमके डीएमके सब है। तो इस हम्माम में सब नंगे हैं। नहीं मिले हैं ना भाई। अगर मिले होते तो फिर बी टीम का आपने हमको तमगा लगा दिया, इन तमाम पार्टियों ने मिलकर, इन तमाम ने हमको बी टीम बना दिया, और नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवादियों का साथ देता है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि आप तमाम को साथ लेकर, क्योंकि 80% बॉन्ड हैदराबाद में बने, मैं ये सोच रहा हूं कि एक प्ले कार्ड लेकर इन तमाम कंपनी सामने जाकर खड़े हो जाऊं, पूछूं कि भाई मैंने क्या जुर्म किया था, आप मुझे क्यों नहीं दे रहे? हैदराबाद का तो मैं ही हूं, आप सबको दे रहे हैं। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो बनाया गया है, इसमें आपको इलेक्टोरल बॉन्ड तो ऐसा नहीं देता ना कि बाज लोग जो है ना क्या बोलते हिंदी का, पुण्य का काम, पुण्यों का काम करते हैं, सदका करते हैं, उर्दू में बोलते,
मैं, मेरी अम्मा मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरे दादा मर गए, चलो 100 लोगों को खाना खिला दो। तो ये लोग तो फ्री लंच नहीं दे रहे ना आपको। अगर कोई लॉटरी वाला 1200 करोड़ दे रहा है तो उसकी लॉटरी उड़ गई, समझे आप, क्योंकि वो दिया है। अगर कोई फार्मेसी कंपनी वाले 550 करोड़ रुपए दिए हैं तो सबको दवा लगाएंगे। अगर कोई इंफ्रा कंपनी वाला 1800 करोड़ दे रहा है तो भाई वो तो और प्रोजेक्ट लेगा। फ्री लंच तो है ही नहीं ना कोई भी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। चुनाव से ठीक पहले क्या ये बात रहेगी, वोटर्स के दिमाग में ये बात रहेगी कि जैसे वोटर्स के दिमाग में बात डालना पड़ेगा कि भैया आपके पैसे आप ही से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जा रहे हैं और उसका उनको फायदा मिल रहा है, तो ना आपको नौकरी मिल रही है। देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो नौजवान है, युवा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर सकें, और पैसा नहीं होने की वह एक वजह है जिसके लिए अग्निवीर लाना पड़ा। मगर पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा आ रहा है, देश के लिए पैसा क्यों नहीं है? फिर आप देखते जाइए कितने काम रुके हुए हैं। तो इसके लिए यकीनन नौजवानों को, देश की जनता को समझाना पड़ेगा कि कैसे ये काम किया जा रहा है। सर, चुनाव से ठीक पहले जैसे चुनाव आज घोषित हो रहा है, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। एक घटना आपके शहर हैदराबाद में कल शाम को घटी। पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी को ईडी ने गिरफ्तार करके ईडी ले गई, और बीआरएस की तरफ से और पूर्व मंत्री केटीआर की तरफ से भी कई ऑब्जेक्शन किए गए। आपका क्या? नहीं, टीआरएस का वर्जन ये है कि उनका अरेस्ट गलत है और अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करेगा। मेरी नेक तमन्नाएं उनके लीडर के साथ है। नहीं, जो ईडी का जो रुख देखा जा रहा है इंटायर इंडिया, तमाम विरोधी पार्टियां, जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं या केंद्र सरकार का जो विरोध कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि ये सब जो सेंट्रल एजेंसी है ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है बीजेपी की। आपका क्या कहना है? पूरा देश देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, तो नई बात क्या है, हो रहा है ये। नहीं, आप उनको चर्चा करके बुला रहे हाँ? हैं। For successive terms, you have represented Hyderabad. Now the BJP has brought in a political debutant who is accusing that you did not allow the jobs to come to the youth of Hyderabad. You did not allow the development of Hyderabad. I would like you to react to that. Well, every party has to contest the election, and there is nothing surprising in what BJP is saying. The only shocking part is that Mr. Narendra Modi had promised that he will give 2 crore jobs a year. Has that been fulfilled? Mr. Narendra Modi talks about making India the 3rd largest economy, but can Mr. Modi say what is the per capita income? Where are we at per capita income? At 150 number. So this is the important point. These are very important points. And thirdly, Mr. Narendra Modi's government has not been able to stop the PLA from occupying 2,000 square kilometers of our land. Out of 55 patrolling points, we have lost round about 15. This was said by the present SP of that area. So, and these are the inflation is an issue. Why is it that before elections petrol and diesel prices kind of decreased? Why didn't you decrease it, let us say 3 months before, 4 months before? And it proves my point that this nation requires elections every 6 months. This nation does not require one nation, one election. This will make any government dictatorial, which they are, and it will violate federalism, which is part of the basic structure of our constitution. There's a political novice who's being now fielded by the BJP against you. How can I control it? You know, how can I pick and choose? No one can pick and choose their opponents. Whoever is a candidate, we have to contest against them. That's it. It's going to be the same for everyone. सर, हम कह रहे हैं, सर, हम कह रहे हैं You have कि extended a hand of हाँ? friendship. You have extended a hand of friendship to the Congress government here, to the Chief Minister here as well. Are you hoping that their help will also be required for you to fight this election in Hyderabad in terms of the kind of candidate that they put up here? As a candidate, I require help from everyone, including from you. You know, from people, every voter, I require help. Then only, any party or a candidate can win. How can I say that I will not take help from him or not take help from him?
And why would I not welcome help from anyone? That means that the voters which are there, my primary importance is the Hyderabad voters, which hopefully I'll be contesting. So one cannot say, "Oh, I will not take that help," and everything has to be taken. सर, कल आपने बयान दिया कि डिविजिव फोर्सेस के खिलाफ हमको काम करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के साथ आपने गले मिले हैं कल, और इस पर क्या कहेंगे सर? क्या नहीं, गले मिलना गुनाह है क्या? हरे रंग में सफेद भी जुड़ना है। हाँ, हरे रंग के ऊपर सफेद अरे भाई, तिरंगे में हरा भी है, सफेद भी है, सैफरन भी है। अरे नहीं, नेशनल फ्लैग में सब रंग है। आप लोग देख ही नहीं रहे नेशनल फ्लैग को। अच्छा, मेरे को हरे से क्यों जोड़ रहे आप? ये बोलिए आप। मैं तो सफेद शेरवानी पहना हुआ हूं, हरे से जोड़ना है क्या मतलब है? मुसलमान है तो हरा ऊन। अरे भाई, एक अब ऐसा हो गया तो क्या तरबूजा मेरा है, खरबूजा आपका है क्या? संतरा आपका नहीं? सर, कांग्रेस के साथ आप जो है अभी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के रेवंत रेड्डी के साथ काफी देखिए, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पहले आपकी दोस्ती बीआरएस के साथ थी, अब कांग्रेस के साथ आपकी दोस्ती। देखिए, एक बात सुनिए, तेलंगाना को मजबूत करने के लिए, तेलंगाना में अमन को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना में फाशिस्ट और कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए ये हमारी एक अखलाकी जिम्मेदारी है, नंबर 1। और हम पिछले 10 साल से भी करते आए, अभी भी हमको करना है। इसलिए हैदराबाद हो या तेलंगाना, वहाँ पर कम्युनल राइट्स ये सब चीज़ें नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि मैं उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने आकर मेट्रो के जो एक लाइन बची हुई थी हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, काम हो गया हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी मेट्रो का, मगर एक लाइन जो बची हुई थी जुबली बस स्टैंड से फलकनुमा का, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन डाला। और दूसरा, उन्होंने मिरालम के पास एक ब्रिज का भी उन्होंने मंजूरी दी। तीसरा, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड वाइडनिंग के लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपए दिए, मैं उनका शुक्रिया अदा किया। तो इसमें बुरी बात क्या है? डेवलपमेंट होना चाहिए ना तेलंगाना में, हैदराबाद में, तो इसमें बुरा क्या है? देखिए, हाँ, हाथ के साथ आपका हाथ है। पहले आरोप लगता था कार की स्टीयरिंग आपके हाथ में। वो आप लोग बोलते थे अमित शाह, अब आप अमित शाह की जबान में बोल रहे हैं। मैंने आरोप प्रति आरोप तो चलते रहता है ना। इलेक्शन है, तेलंगाना की आवाम ने उनको सत्ता दी है तो हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और हमको हैदराबाद को आगे लेके जाना है। तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। सर, आप बीआरएस के साथ कह रहे हैं, आप क्या कांग्रेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? कैसे समझे? पहले आप बीआरएस के साथ आपकी दोस्ती का हाथ था। देखिए, Or is it about the bigger danger of BJP that you want to keep out so you can join hands? देखिए, आगे तो बढ़ना है, पीछे तो हटना नहीं है। आगे तो बढ़ना है, पीछे कहाँ हटेंगे? पीछे हटने का नाम असदुद्दीन ओवैसी है ही नहीं। अरे आगे बढ़ना है ना। आगे बढ़ेंगे ही तो हर पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ती है ना। नहीं, किसके साथ? अरे आगे बढ़ेंगे भाई, किसके साथ बोलते? हम में काबिलियत है, हम खुद आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक हमारा जो सियासी सफर रहा है और आगे भी रहेगा, तो उसमें हमारी कोशिशें रही, मेहनत रही, लोगों का साथ रहा, और रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। कितने सीट आप, क्योंकि अभी चुनाव के डेट डिक्लेयर हो रहे हैं, तो आपने भी सोचा होगा कि देखिए, औरंगाबाद से इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब लड़ेंगे, किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे बिहार के अध्यक्ष लड़ेंगे, हैदराबाद से इंशाल्लाह पार्टी असदुद्दीन ओवैसी को टिकट देगी। इससे हटकर भी बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में हमारे वहाँ के पार्टी प्रेसिडेंट्स डिसाइड कर रहे हैं, आपको बता देंगे। 11 सीट की बात है बिहार में, उसका क्या? हाँ? 11 सीट की मांग की है बिहार यूनिट ने आपसे। तो हाँ, वो लोग डिस्कस कर रहे, मैं उन पे छोड़ा हूँ, वो बताएंगे आप। सिकंदराबाद से आपकी पार्टी लड़ रही है, वही बताएंगे आपको, देखेंगे। अच्छा सर, आपकी अपोनेंट हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में काफी घूम रहे हैं, बीजेपी से उनको टिकट मिला है, उनका सीधे आप पे आरोप है कि आपने ओल्ड सिटी को जानबूझ के पिछड़ा रखा, डेवलपमेंट नहीं किया, यूथ बेरोजगार हैं, ये सारे आरोप वो लगाती चल रही हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रही हैं। नहीं, देखिए, पॉलिटिकल हम पार्टी के अपोनेंट है, अब जाहिर है अचानक इलेक्शन से पहले आ गए तो कुछ बोलना पड़ता है, तो बोलिए, कोई बात नहीं। आरटीआई डालिए, आरटीआई से मालूम हो जाएगा आपको कितने डेवलपमेंट के काम हुए नहीं हुए।
बुनियादी सवाल ये मुल्क जानना चाहता है कि 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत के जो युवाओं का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड पूरे विश्व में हमारे पास है, उनका मुकद्दर बेरोजगारी क्यों बना दिया। देश ये जानना चाहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में 6,000 करोड़ रुपए कैसे बीजेपी को मिले और इसका इस्तेमाल कैसे हुआ। देश ये जानना चाहता है कि जिन्होंने आपको दिया है, आपने उनको क्या क्या नहीं दे दिया है। हाँ, आपने एक बॉन्ड उनको दिया तो आपने उन पर एक बार नहीं कई चीजें उन पर वार दी आपने। तो ये देश जानना चाहता है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री चीन को क्यों छोड़ दिए जमीन। वो बताना पड़ेगा उनको। भाई बीजेपी के पास जो 6,000 करोड़ रुपए आए हैं, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का पूरा बजट है, मालूम आपको। 6,000 करोड़ बीजेपी के पास है और देश के नौजवान की जेब फटी हुई है। 6,000 करोड़ बीजेपी के पास है, 1,500 करोड़ ममता के पास है, 1,100 करोड़ कांग्रेस के पास है, 1,000 करोड़ टीआरएस के पास है, डीएमके के पास है। देश के युवाओं के पास क्या है भाई, ये सवाल है। वो तो फर्जी वोटों की भी बात करी है कि हाँ अभी देख, अरे आप सभी अभी दो कैसा होगा। ममता दीदी को चोट लगी है उनको। मैं अरे भाई क्यों नहीं यार, किसी से पर्सनली हेट्रेड क्यों होगी। हम हम तो हमारे बेस्ट विशेस उनको देते हैं और अल्लाह करे जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। Sir, do you think the India alliance stands a strong chance against Narendra Modi? Locally, you are the strongest. I have said very clearly that Hyderabad, people of Hyderabad Parliament constituency and Telangana and people of Seemanchal will vote against this unconstitutional religion-based law, discriminatory law, that is CAA. That is what I have stated. The rest, I am not part of that alliance, so I cannot speak on their behalf. Sir, but as somebody with national ambitions, you are contesting in other states as well. As somebody with national ambitions who's contesting in other states, what is your view? What do you think about the India alliance? You don't have to. No, don't reduce me to the level of some political analyst who has no work to do, who sits every day at the TV channels and gets something in return. I cannot stoop down to that level. I can only speak on behalf of my political party, which I have told you just now. As far as other alliances are concerned, they have more qualified people than me and they can answer your question in a very good way. Is your party open to the alliance? भाई आप मेरे दरवाजे में दारुसलाम में आके दारुसलाम में दरवाजे है ही नहीं, ओपन ग्राउंड में मेरा दफ्तर है। स्वागत करते हैं। अरे इम्तियाज जलील ने तो एक नहीं 2 मरतबा बोला महाराष्ट्र में, अख्तरुल ईमान बोले किशनगंज में, और क्या बोले। ये सिटीजनशिप एक्ट में बन रहा है ना, एनपीआर एनआरसी में सिटीजनशिप एक्ट का है। आप रिलीजन के ऊपर सिटीजनशिप दे रहे तो रिलीजन के ऊपर छीन नहीं सकते क्या अमित शाह ने लोकसभा में मेरा नाम लेकर नहीं कहा था कि ओबीसी एनपीआर होगा, एनआरसी होगा, वो बोलते हैं कि इसका हिस्सा नहीं है। पार्लियामेंट में बोला गया, आपके टीवी चैनलों पर आके भी बोले। आसाम में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, एनआरसी हुआ, 1600 करोड़ रुपए खर्चा किए गए, 50 लोगों ने सुसाइड किया। उसके बाद जब 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से करीब 17 लाख नॉन मुस्लिम लोगों के नाम हैं, तो आसाम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम उनको CAA के सिटीजनशिप दे देंगे। ऑन रिकॉर्ड कहा इस बात को। वो जो 1 लाख 1.25 लाख मुसलमान है, वो क्या करेंगे? अभी नहीं मालूम, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं मालूम। हाँ, क्या प्रधानमंत्री
आपको बोल दिया हूँ, आप ही बोलो फिर